امریکی صدر ٹرمپ نے ہندوستان پر 25% ٹیرف کا کیا اعلان، کہا فیصلہ حتمی نہیں، بات چیت جاری ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے مابین تجارتی معاہدہ کامیابی سے طے پا گیا، امریکی صدر ٹرمپ نے ٹروتھ پوسٹ پر پاک معاہدے کا کیا اعلان۔ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس میں بہار میں ایس آئی آر پر اپوزیشن کا احتجاج جاری، لوک سبھا کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک ملتوی، راجیہ سبھا میں منی پور میں صدر راج کی توسیع پر ہوگا غور۔ مالیگاؤں بم دھماکہ کیس 17 سال بعد آج فیصلہ، خصوصی عدالت نے سنایا ہے فیصلہ، ناکافی شواہد کی بنیاد پر تمام 7 ملزمین بری، پرگیا سنگھ ٹھاکر اور کرنل پروہت بھی بری۔ پارٹی بدلنے والے ارکان اسمبلی کی نااہلی سے متعلق فیصلہ اندرون 3 ماہ کیا جائے، BRS کے 10 ارکان اسمبلی کے کیس کا سپریم کورٹ نے سنایا فیصلہ، تلنگانہ ہائی کورٹ کے ڈویژنل بنچ کا فیصلہ منسوخ۔ غزہ پر اسرائیل کے حملے جاری، تازہ حملوں میں 91 نہتے فلسطینی شہید، شہداء میں امداد کے منتظر 71 فلسطینی بھی شامل۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کی، اور اس سے پہلے بات کریں گے مالیگاؤں کی کہ مالیگاؤں میں جو بم دھماکہ ہوا تھا اس سلسلے میں 17 سال کے بعد فیصلہ سنا دیا گیا ہے، اور فیصلے میں تمام ملزمین کو بری کیا گیا ہے، تمام 7 ملزمین کو بری کیا گیا ہے، جس میں پرگیا سنگھ ٹھاکر سمیت کرنل پروہت بھی ہے۔ پارلیمنٹ کی بات کریں، پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس میں بہار میں ایس آئی آر پر اپوزیشن کا احتجاج جاری ہے، لوک سبھا کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے، راجیہ سبھا میں منی پور میں صدر راج کی توسیع پر غور کیا جائے گا۔ راجیہ سبھا پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے 11ویں دن منی پور میں صدر راج کی توسیع اور سمندری بل سے متعلق غور کیا جائے گا، اس کا قانونی قرارداد پیش کی جائے گی۔ مانسون اجلاس کے آغاز میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی طرف سے ایک قرارداد پیش کی گئی تھی کہ سال 3 اگست کو شمالی ریاست میں صدر راج کی مدت میں 6 ماہ کی توسیع کی جائے۔ اس کے بعد اس پر غور کیا جا رہا ہے اور صدر راج کی توسیع میں کا فیصلہ کیا جائے گا، اور ساتھ ہی پارلیمنٹ کے لوک سبھا یعنی ایوان زیرین میں اپوزیشن کے احتجاج کے بعد لوک سبھا کی کارروائی کو 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے، اور اپوزیشن کا احتجاج آج بھی جاری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہندوستان پر 25% درآمدی ٹیرف کا اعلان کر دیا، تاہم انہوں نے اب کہا ہے کہ یہ فیصلہ حتمی نہیں ہے اور بات چیت کا دروازہ ابھی کھلا ہے۔ ٹرمپ اس ہفتے کے آخر تک معلوم ہو جائے گا کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی ڈیل ہوتی ہے یا اعلان شدہ ٹیرف نافذ ہوتا ہے، ٹرمپ نے یہ کہا۔ ٹرمپ نے روس سے سستا تیل خریدنے پر ہندوستان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ یہ براہ راست امریکہ کے معاشی مفادات کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا ہندوستان ہمیں بہت کچھ بیچتا ہے لیکن ہم سے زیادہ کچھ نہیں خرید پاتا کیونکہ ان کی ٹیرف دنیا میں سب سے زیادہ ہے، ہمیں اس تجارتی خسارے سے نکلنا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہندوستان برکس جیسے گروپ کا حصہ ہے جو ڈالر پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے کہا یہ گروپ دراصل امریکہ مخالف ایجنڈا لے کر چل رہا ہے، یعنی برکس امریکہ مخالف ایجنڈے پر کاربند ہے اور ہم کسی بھی کو بھی ڈالر کے عالمی کردار کو چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ نے ایران سے پیٹرولیم مصنوعات کی تجارت پر 6 ہندوستانی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں، اور ان پابندیوں کا اطلاق ایگزیکٹو آرڈر 138546 کے تحت کیا گیا ہے، جو ایران کے پیٹرولیم اور پیٹرو کیمیکل شعبے پر امریکی پابندیوں کے خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے۔ ٹرمپ کے اس اعلان کے بعد آج سینسیکس اور شیئر مارکیٹ میں زبردست گراوٹ دیکھی جا رہی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ نے جن ہندوستانی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی ہیں ان کمپنیوں نے دانستہ طور پر ایرانی پیٹرولیم مصنوعات کی خریداری اور تقسیم کے اہم سودوں میں حصہ لیا، جو امریکی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پابندی کا شکار بننے والی کمپنیوں میں کیمیکل سولوشنز پرائیویٹ لمیٹڈ،
जो पेटाडाइकेम प्राइवेट लिमिटेड, ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल्स लिमिटेड और कंचन पॉलीमर्स शामिल हैं। अमरीकी हुकाम ने बताया कि कंचन पॉलीमर्स ने तानाइस ट्रेडिंग से 1.3 मिलियन डॉलर मालियत के ईरानी पेट्रोकेमिकल मसनूआत दरामद किए हैं, जिसके बाद इस पर पाबंदी आयद की गई है। इन इक़दामात को ट्रंप इंतज़ामिया ने ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी दबाव की पॉलिसी के तहत अंजाम दिया है। उधर रूस से खाम तेल की दरामदात में इजाफे के बाद हिंदुस्तान पर दबाव बढ़ रहा है। रूस इस वक्त हिंदुस्तान को तेल की सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है, जिसे अमेरिका अपने जोग्राफियाई और इक़्तिसादी मफादात के मुनाफी करार दे रहा है। उधर पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन तिजारती मुआहिदा कामयाबी से तय पा गया। इस मुआहिदे का मकसद दो तरफा तिजारत का फ़रोग़, मंडी तक रसाई को बढ़ाना, सरमायाकारी को राग़िब करना और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना है। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक ये पेशरफ्त, यानी पाकिस्तान की वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक ये पेशरफ्त वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी वज़ीर तिजारत और अमरीकी तिजारती नुमाइंदे से मुलाकात के दौरान हुई है। मुलाकात में सेक्रेटरी कॉमर्स जवाद पाल और अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख भी मौजूद थे। इस मुआहिदे का ऐलान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपने पोस्ट के जरिए किया था। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पाक अमेरिका मुआहिदा के नतीजे में बाहमी टैरिफ, ख़ास तौर पर अमेरिका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी आएगी। एलामिया में कहा गया है कि यह मुआहिदा दोनों मुल्कों के दरमियान अहम इक़्तिसादी शोबों, ख़ास तौर पर तवानाई, मादनियात, IT और क्रिप्टो करेंसी और दीगर में इक़्तिसादी ताउन के एक नए दौर का आगाज़ बनेगा। लेकिन इधर हिंदुस्तान में ट्रंप के ऐलान के बाद हिंदुस्तान की मार्केट शेयर बाज़ार में ज़बरदस्त गिरावट देखी जा रही है। ट्रंप के टैरिफ का ऐलान का असर देखा जा रहा है। शेयर बाज़ार मुंह के बल गिरा है। सेंसेक्स 750 यानी 750 पॉइंट्स नीचे और निफ्टी में भी गिरावट देखी गई है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बम का सीधा असर पड़ा है, हिंदुस्तानी शेयर बाजार में देखने को मिल रहा है। ट्रंप ने हिंदुस्तान पर कल 25% टैरिफ और इजाफी जुर्माने का ऐलान किया था, जिसकी वजह से आज शेयर बाजार में, हिंदुस्तान के शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। सेंसेक्स 750 यानी 750 पॉइंट से ज़्यादा टूट चुका है, जबकि निफ्टी भी 200 पॉइंट से ज़्यादा की गैप के साथ गैप डाउन के बाद खुला है। निफ्टी बैंक तकरीबन 300 पॉइंट्स, निफ्टी IT 215 पॉइंट्स और इसी तरह FMCG 300 पॉइंट से ज़्यादा गिरावट पर कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी बैंक को इससे ज़बरदस्त नुकसान हुआ। बैंक का कारोबार इससे मुतासिर होगा क्योंकि टैरिफ आयद किया गया अमेरिका की जानिब से, और हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच मौजूद NRIs जो बैंक ट्रांजैक्शन करेंगे इस टैरिफ के बाद वो मुतासिर होंगे। इसी तरह निफ्टी IT 215 पॉइंट्स गिरा है, यानी हिंदुस्तान में काम करने वाली IT कंपनीज़ को भी इससे ज़बरदस्त नुकसान होने वाला है। और यही वजह है कि आज इसका असर शेयर मार्केट में IT कंपनियों पर भी गिरा है। तो निफ्टी IT 215 पॉइंट्स गिरा है और FMCG 300 पॉइंट्स गिरा है, यानी FMCG के प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी अमरीकी बरामद के वक्त, यानी हिंदुस्तान से अमेरिका अगर वो बरामद किए जाते हैं तो उस पर टैरिफ लगेगा और इससे डिमांड कम होगी, और इसी का असर यहाँ दिखाई दे रहा है, यानी इंडिया के शेयर बाजार में दिखाई दे रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हिंदुस्तान पर 25% टैरिफ लगाने पर समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने रद्द अमल दिया। उनका कहना है कि गुज़िश्ता 11 बरसों से ऐसी कौन सी स्टडी चल रही थी कि अमेरिकी सदर ने हिंदुस्तान पर ऐसे रिमार्क्स कर दिए हैं। ट्रंप ने हिंदुस्तान के कवानीन के बारे में जो कुछ कहा, इस पर भी गौर किया जाना चाहिए। 11 साल बाद भी इस कदर अमेरिकी दोस्ती क्यों निभाई जा रही है, उन्होंने पूछा है। ये 11 साल से कौन सी स्टडी चल रही थी? आप सोचिए 11 साल से क्या स्टडी चल रही थी कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति को कैसे शब्दों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किन शब्दों से भारत को कहना पड़ा उन्होंने कहा भारत के भी अपने कानून के बारे में क्या कहा उन्होंने। सोचिए आप
کہ جو سرکار لگاتار پچھلے 11 برسوں سے دوستی کے بعد دوستی اور کتنی دوستی بڑھائی کہ آج ہمیں کیا دن دیکھنے کے اوپر رہے ہیں. یہ شروعات ہے برے دنوں کی, کیونکہ اس دیش کے نوجوانوں کو نوکری چاہیے, روزگار چاہیے. ارتھ ویوستھا بہتر ہوگی تو روزگار نوکریاں ملیں گی. اگر اس طرح کی پابندیاں لگیں گی, اس طرح کی رکاوٹیں ہوں گی تو ہمارے دیش کی ارتھ ویوستھا کا کیا ہوگا؟ 2008 کے مالیگاؤں بم دھماکہ کیس میں 17 سال کے طویل انتظار کے بعد قومی تفتیشی ایجنسی NIA کی خصوصی عدالت آج اس نے فیصلہ سنا دیا ہے. اور عدالت نے فیصلہ سنایا ہے کہ ناکافی شواہد کی بنیاد پر پرگیا سنگھ ٹھاکر سمیت جملہ 7 افراد کو بری کیا جاتا ہے. تو یہ خصوصی فیصلہ آج خصوصی عدالت نے سنایا. مالیگاؤں بم دھماکہ معاملہ ہے. پرگیا ٹھاکر سمیت تمام 7 ملزمین, یعنی مالیگاؤں بم دھماکے کے تمام 7 ملزمین کو بری کر دیا گیا ہے. عدالت نے ثبوتوں کو ناکافی بھی قرار دیا ہے. 2008 مالیگاؤں بم دھماکے کے معاملے میں خصوصی عدالت نے تمام 7 ملزمین کو بری کر دیا ہے. عدالت نے کہا کہ استغاثہ مضبوط معتبر ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا ہے. تفصیلات کے مطابق ممبئی کی ایک خصوصی عدالت نے 2008 کے مالیگاؤں بم دھماکہ کیس میں جمعرات کو تمام 7 ملزمین کو بری کر دیا. بری کیے گئے افراد میں BJP کے رکن پارلیمنٹ رہ چکی پرگیا سنگھ ٹھاکر, لیفٹیننٹ کرنل پرساد پروہت, ریٹائرڈ میجر رمیش اپادھیائے, اجے راہیرکر, سمیر کلکرنی اور سدھاکر چترویدی اور سدھاکر دھرویدی بھی شامل ہیں. اور عدالت نے کہا کہ اگرچہ دھماکے کی حقیقت کو تسلیم کیا گیا مگر یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ موٹر سائیکل میں بم نصب کیا گیا تھا. اس کے علاوہ سازش, میٹنگز اور فون کالز کی نگرانی کے الزامات کو بھی عدالت نے ناقابل قبول قرار دیا ہے, کیونکہ کال ریکارڈنگ کی اجازت قانونی طور پر حاصل نہیں کی گئی تھی. اور خصوصی جج نے کہا کہ استغاثہ دھماکے کے پیچھے کسی مضبوط قابل اعتبار ثبوت کی فراہمی میں ناکام رہا اور شک کی بنیاد پر سزا نہیں دی جا سکتی. عدالت کے مطابق اگرچہ کچھ مشتبہ پہلو موجود تھے مگر وہ سزا کے لیے کافی نہیں تھے. عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ انسداد دہشت گردی قانون UAPA کے دفعات لاگو کرنے کے لیے جو منظوری نامے پیش کیے گئے ہیں وہ بھی قانون لحاظ سے ناقص تھے. چنانچہ ان دفعات کو بھی مقدمے میں شامل کرنا درست نہیں تھا. اور اس کے ساتھ ہی عدالت نے حکومت کو ہدایت دی کہ مالیگاؤں دھماکے میں جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین کو 2 لاکھ روپے جبکہ زخمیوں کو 50,000 روپے معاوضہ دیا جائے. بتا دیں کہ 29 ستمبر 2008 کو مہاراشٹر کے ضلع ناسک سے تقریباً 100 کلومیٹر دور مالیگاؤں میں ایک انڈسٹری کے لیے مشہور ہے ایک مصروف چوراہے پر بم دھماکہ ہوا تھا. اور یہ دھماکہ رمضان کے دوران مسلم اکثریتی علاقے میں ہوا تھا جس میں 6 افراد جاں بحق 100 سے زائد زخمی ہوئے. عدالت کا تفصیلی فیصلہ ابھی جاری ہے لیکن جو سامنے فیصلہ آیا ہے اس کے مطابق اس معاملے کے 7 ملزمین تھے. 7 ملزمین کو عدالت نے بری کر دیا ہے. ناکافی ثبوتوں اور شواہد کی بنیاد پر عدالت نے بری کیا ہے, جس میں پرگیا سنگھ ٹھاکر بھی شامل ہے اور کرنل پروہت بھی شامل ہے. یہ تمام کے تمام بری کر دیے گئے ہیں. نوئیڈا کے نٹھاری سانحے معاملے میں خاص ملزم مویندر سنگھ پنڈھیر اور اس کے نوکر سریندر کولی کو سپریم کورٹ سے بھی بڑی راحت ملی ہے. اور عدالت نے الہ آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو برقرار رکھا ہے جس میں مویندر سنگھ پنڈھیر اور اس کے نوکر سریندر کو بری کیا گیا تھا. الہ آباد ہائی کورٹ کے ذریعے 16 اکتوبر 2023 کو سنائے گئے فیصلے میں پنڈھیر کو 2 معاملوں میں اور کولی کو 12 معاملوں میں ثبوتوں کی کمی کی وجہ سے بری کر دیا گیا. سپریم کورٹ نے اس معاملے کی سماعت کرتے ہوئے فیصلے کو چیلنج دینے والی عرضیوں کو خارج کرتے ہوئے الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو صحیح ٹھہرایا. فی الحال عدالت نے پنڈھیر کو مکمل طور پر بری کر دیا ہے جبکہ کولی ایک زیر التوا معاملے میں جیل میں. واضح ہے کہ 7 مئی 2006 کو نٹھاری کے ایک خاتون کو پنڈھیر نے نوکری دلانے کے بہانے بلایا تھا. اس کے بعد خاتون واپس گھر نہیں پہنچی. خاتون کے والد نے نوئیڈا کے سیکٹر 20 تھانے گمشدگی کا کیس درج کرایا تھا. اس کے بعد 29 دسمبر 2006 کو نٹھاری میں مویندر سنگھ پنڈھیر کی کوٹھی کے پیچھے نالے میں پولیس کو 19 بچوں اور خواتین کے انسانی ڈھانچے ملے تھے اور اس سلسلے میں پولیس نے پنڈھیر اور اس کے نوکر سریندر کو گرفتار کیا تھا.
सुप्रीम कोर्ट ने जुमरात को तेलंगाना हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले को मनसूख करते हुए हुक्म दिया है कि कांग्रेस में शामिल होने वाले बीआरएस के 10 अरकान असम्बली की नाअहली से मुतालिक दरखास्तों पर स्पीकर 3 माह के अंदर फैसला करे। ये दरखास्तें बीआरएस कायदीन के.टी. रामाराव, पी. कौशिक रेड्डी और के.पी. विवेकानंद ने दायर की थी। इन दरखास्तों में असम्बली स्पीकर से नाअहली की दरखास्तों पर कार्रवाई की अपील की गई थी। चीफ जस्टिस बी आर गवाई ने कहा, सियासी वफादारी बदलने के वाक़यात जमहूरियत के लिए ख़तरा है और स्पीकर जब 10वें शेड्यूल के तहत फ़ैसला करते हैं तो वो आइनी तहफ़्फ़ुज़ के हामिल नहीं होते, बल्कि एक ट्रिब्यूनल की हैसियत से काम करते हैं जिसके फैसला अदालती जांच के दायरे में आते हैं। अदालत ने वाज़ेह किया कि हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने सिंगल जज के हुक्म में बिला वजह मुदाखलत की, हालांकि इस हुक्म में वक्त मुकर्रर करने जैसी कोई हिदायत भी शामिल नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी रुकन असम्बली को कार्रवाई में ताख़ीर का मौका न दिया जाए और अगर ऐसा हुआ तो स्पीकर इसके खिलाफ मनफी नतीजा अखज़ कर सकते हैं। पार्टी बदलने वाले बीआरएस के 10 अरकान असम्बली के केस का सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी पैदा हुई है, जिसका असर आइंदा 2 दिनों तक तेलंगाना में दरमियाने से शदीद बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया। इसके साथ साथ बहर अरब में भी हवा का गहरा दबाव पैदा होने का इम्कान है। इन हालात के पेश नज़र हैदराबाद, वरंगल, करीमनगर, आदिलाबाद, यदाद्री, भुवनगिर, महबूब नगर, कुमरम भीम, आसिफाबाद, रंगारेड्डी अजला में मूसलाधार बारिश का अंदेशा है। महकमे मौसमियात ने अवाम को खबरदार करते हुए अलर्ट जारी किया है। माहिरीन के मुताबिक इन दिनों तेज़ हवाएं 40 से 50 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं और माहिरीन सेहत ने मशवरा दिया है कि अचानक तेज़ हवाएं और मौसम की तब्दीली की वजह से लोग बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए एहतियाती तदाबीर भी अख्तियार करें। हैदराबाद के मुजाफात से चीते को पकड़ा गया है। मुख्तलिफ इलाकों यानी गंडीपेट, मोइनाबाद और शेखपेट मंडल में आवाम को कई दिनों से चीता खौफजदा कर रहा था, जो आखिरकार महकमे जंगलात के जाल में फंस गया। गुज़िश्ता तकरीबन 20 दिनों से मुख्तलिफ मकामात पर घूम रहा था। ये चीता मंचरीउल्ला फॉरेस्ट टैग पार्क में नस्ब करदा खुसूसी पिंजरे में पकड़ा गया है और पिंजरे में उसके दाखिल होते ही मकामी अवाम ने सुकून की सांस ली है। महकमे जंगलात के अहदेदार ने बताया कि चीते को नेहरू ज़ू पार्क मुंतकिल कर दिया गया है। गज़ा पर इजराइल के हमले जारी हैं। ताज़ा हमलों में 91 निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद हो गए और इन शोधा में इमदाद की मुंतज़िर 71 फ़लस्तीनी भी शामिल हैं। शुमाली गज़ा में इंसानी इमदाद के इंतज़ार में खड़े शहरियों पर इजरायली फ़ौज ने फायरिंग कर दी। नतीजे में कम से कम 71 अफराद शहीद और 300 ज़ख्मी हो गए। अशिफा हॉस्पिटल के डायरेक्टर के मुताबिक यह वाक़या मुबैना तौर पर क्रॉसिंग पॉइंट से तकरीबन 3 किलोमीटर जनूब मगरिब में पेश आया, जहाँ से इमदादी ट्रक गज़ा में दाखिल होते हैं। उन्होंने बताया कि अस्पताल में फायरिंग के नतीजे में 35 लाशें लाई गईं और इससे कबल सिविल डिफेंस एजेंसी ने इतला दी कि इजरायली फ़ौज की जानिब से 4 मुख्तलिफ हमलों में मज़ीद 14 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, जिनमें से 3 हमले इमदादी मराकज़ के करीब हुए और इनमें से 2 वाक़यात के हवाले से इजरायली फ़ौज ने दावा किया है कि उन्होंने लोगों को इमदादी मरकज़ के करीब आने से रोकने के लिए फायर किए थे। दूसरी जानिब बुध को मज़ीद बताया जा रहा है कि भूख की शिद्दत से मज़ीद 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जिसके बाद ग़िज़ाई क़िल्लत से मजमूई अमवात 154 तक पहुँच गई हैं। इजरायली फ़नकारों और दानिश्वरों ने अपनी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए आलमी बरादरी से इजराइल पर सख्त पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा कर दिया है। गज़ा में होने वाले जुल्म पर अब इजरायली फ़नकार और दानिश्वर भी सामने आ गए हैं और उन्होंने अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इजरायली फ़नकारों और दानिश्वरों ने आलमी बरादरी से इजराइल पर सख्त पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा भी किया है। शुरका का कहना था कि आलमी बरादरी इजराइल को गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी से बाज रखे और गज़ा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इजरायली फ़ौज को हमले रोकने पर मजबूर किया जाए। इजरायली हुकूमत फ़लस्तीनियों को भूख से मार रही है।
कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का कहना है कि कनाडा तवील अरसे से दोनों रियासतों के दरमियान मसले के हल के लिए पुरआज़म है, यानी इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान, और कनाडा चाहता है कि एक आज़ाद, काबिल अमल और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत इसराइल के साथ अमन और सलामती के साथ मिलकर रहे। एक तरफ जहां गज़ा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी हैं, वहीं दूसरी तरफ फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान करने वाले मुल्कों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। फ्रांस और बरतानिया के बाद अब कनाडा और माल्टा ने भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में सितंबर में फ़लस्तीन को आज़ाद मुल्क के तौर पर मंजूरी देने का ऐलान कर दिया। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कनाडा सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर मंजूरी देने के मंसूबे पर काम कर रहा है। हालांकि मार्क कार्नी ने वाज़ेह किया है कि कुछ शराइत के साथ इस मंजूरी पर काम होगा। बात माल्टा की करें तो उधर माल्टा की वज़ारत ख़ारजा के मुस्तक़िल सेक्रेटरी ने भी अक़वाम मुत्तहिदा में कहा है कि उनका मुल्क तवील अरसे से फ़लस्तीनों की खुद मुख्तारी के हक़ की हिमायत करता रहा। उन्होंने बताया कि माल्टा सितंबर में फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी देगा। माल्टा के वज़ीर आज़म ने फेसबुक पोस्ट करके बताया है कि उनका मुल्क यह कदम मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल अमन की समत में उठा रहा है। अब माल्टा उन 145 से ज़ायद मुल्कों की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा जिन्होंने फ़लस्तीन को आज़ाद मुल्क के तौर पर मंजूरी दी, और इनमें दर्जनों यूरोपीय ममालिक भी शामिल हैं। कनाडा और माल्टा हुकूमत ने यह इक़दाम ऐसे वक्त में उठाया है जब गज़ा में शदीद जंग चल रही है और इसराइल फ़लस्तीन का तनाज़ा 80 साल बाद भी कोई हल नहीं निकल सका है। इस फैसले को दो रियासती हल की तरफ एक फ़ैसला कुन मोड़ माना जा रहा है। और उधर अमेरिका और इसराइल की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया। अमेरिका और इसराइल का फ़लस्तीन को तस्लीम करने से मुतालिक कनाडा के ऐलान पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। इसराइल ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से मुतालिक कनाडा के वज़ीर आज़म के बयान को मुस्तरद कर दिया। इसराइली वज़ारत ख़ारजा का कहना है कैनेडियन हुकूमत के मौक़िफ़ में तब्दीली हमास के लिए इनाम है और इससे गज़ा में जंगबंदी की कोशिशों को नुकसान पहुँचेगा। इसराइली वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक कनाडा के मौक़िफ़ में तब्दीली से या गमालियों की रिहाई के फ्रेमवर्क को नुकसान होगा। उधर व्हाइट हाउस ने कहा ट्रंप समझते हैं कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से हमास को इनाम मिलेगा। सदर ट्रंप नहीं समझते कि उन्हें इनाम दिया जाना चाहिए। याद रहे, इससे पहले फ्रांस और बरतानिया भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने पर मशरूत रजामंदी ज़ाहिर कर चुके हैं, और अब बताया जा रहा है कि कनाडा की जानिब से भी ऐलान किया गया और माल्टा ने भी कहा कि वो फ़लस्तीन को एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत, खुद मुख्तार रियासत तस्लीम करने वाला है, और अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास का इंतज़ार किया जा रहा है। बात कैलिफोर्निया की। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में जदीद तरीन F-35 लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक F-35 लड़ाका तैयारा सेंट्रल कैलिफोर्निया में नेवल एयरबेस में गिरा है और अमेरिकी नेवी ने भी F-35 तैयारे के गिरने की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गिरने वाले लड़ाका तैयारे का पायलट बाहिफाजत तैयारे से निकलने में कामयाब रहा, ताहम तैयारे के गिरने की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी। गिर कर तबाह होने वाले तैयारे की वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश, और वीडियोस में देखा जा सकता है कि तबाह होने के बाद तैयारे में आग लगी हुई है और धुएं के बादल आसमान पर दूर दूर तक फैले हुए हैं। अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि F-35 लड़ाका तैयारे के हादसे में किसी के ज़ख्मी होने की इत्तलात नहीं मिली, ताहम तैयारे के गिरने की वजूहात के लिए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया है। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। अमेरिकी सदर ट्रंप ने हिंदुस्तान पर 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया। कहा फैसला हतमी नहीं, बातचीत जारी। टैरिफ का असर आज शेयर मार्केटों पर। शेयर मार्केट पर 6 हिंदुस्तानी कंपनियों पर आयद कर दी गई है पाबंदियां। पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन तिजारती मुआहदा कामयाबी से तय पा गया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ट्रुथ पोस्ट पर पाक मुआहदे का किया ऐलान। पार्लियामेंट के मानसून इजलास में बिहार में SIR पर अपोजिशन का एहतजाज जारी। लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी। राज्यसभा में मणिपुर में सदर राज की तोसी पर होगा वोट। मालेगांव बम धमाका केस 17 साल बाद आज फैसला। खुसूसी अदालत ने सुनाया है फैसला। नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत जुमला 7 अफराद बरी, कर्नल प्रोहिस भी बरी कर दिए गए। पार्टी बदलने वाले अरकान असम्बली की नाअहली से मुतालिक फैसला अंदरून 3 माह किया जाए। BRS के 10 अरकान असम्बली के केस का सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला।
غزہ پر اسرائیل کے حملے جاری، تازہ حملوں میں 91 نہتے فلسطینی شہید، شہداء میں امداد کی منتظر 71 فلسطینی بھی شامل۔ نیوز فرسٹ میں بس اتنا ہی۔ اعظم علی خان یوسف زئی کو دیں اجازت، خدا حافظ۔